Assalamu alaikum, students. How are you all? Yes, we are going to continue our story, King Lear, page number 74, as you can see on the screen. Yesterday we read about King Lear that he had decided to stay 1 month with Conrill and 1 month with Regan, and he had not given anything to Cordelia. Ryan Kashif, and now during his 1 month stay at Conrill, he found that Conrill was not as loving, as caring as she had told him in the court before all his ministers. That was not at all true. Conrill's behavior was insulting to him. Just after a week of his stay, she had told her servants to ignore him, and King Lear was feeling his insult, and now he thought that he had made mistake. He had made a great mistake, no doubt, by giving away all his wealth and property and kingdom to his both daughters. Now, one day, a stranger came to him and he attended him at the dinner, and he appointed him as his new servant. The servant was, in fact, the Earl of Kent, who had spoken in the favor of Cordelia in the court, and the king had ordered him to leave his country within a week. Now he had come to check the behavior of Conrill during his stay over there. He didn't trust Conrill. He didn't trust Conrill or Regan to think of their father's best interest. He had dressed himself to look like a servant so that he could stay close to the king and take care of his needs. When the king asked his name, he said it was Chaos. He didn't tell his real name, and he had changed his appearance so that king could not recognize him, as he was afraid of his anger, and he wanted to check about all the treatment towards the king. King Lear had one other friend besides Cass, his fool. किंग लेयर का उसके अलावा एक और सर्वेंट भी था जो उसके साथ था, दैट वाज हिज फूल जो उन टाइम्स में, इन ओल्डन टाइम्स, पीपल यूज्ड टू keep their fools with them in the court for entertainment, because there were no means of entertainment as we have these days. तो उन दिनों में लोगों के बादशाह के पास उनके फूल होते थे, who used to entertain them with their talking. गुफ्तगू से, अपने एक्ट से वो बादशाह को एंटरटेन करते जब भी उनका मूड खराब होता. Whose duty was to amuse the king with jokes and songs. In fact, the fool was allowed to speak more freely before the king than almost anyone else. और दरअसल फूल को इजाजत होती थी कि वो किसी भी बात पर किंग के साथ फ्रीली गुफ्तगू कर सकता था. A clever fool could give advice to a king or even tell him he was wrong. और एक क्लेवर फूल, जो अक्लमंद फूल होता था, वो बादशाह को इवन नसीहत भी कर सकता था. अपने हंसी मजाक में ही, किसी आयरॉनिकल बात के जरिए वो बादशाह को उसकी गलती का एहसास भी दिला सकता था कि वो गलती पर है, और उसको नसीहत भी कर सकता था हंसी मजाक के जरिए, जोक्स में ही. As long as he did it in a clever puzzle or a rhyme that made the king laugh.
और वो ये सब बड़े तरीके से उसे बात करनी पड़ती थी. King Lear's fool loved him greatly. King Lear का फूल भी उसके साथ बहुत sincere था, and he used to love him greatly. He had tried to warn Lear about Gondrel and Regan by saying that daughters nowadays wanted obedient fathers instead of the other way round. किंग लेयर के फूल ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की. अब चूंकि किंग लेयर को गॉनविल का ट्रीटमेंट देखकर गुस्सा आता था, उसे बुरा लगता था गॉनविल का ट्रीटमेंट, वो उससे इरिटेट हो जाता था, तो किंग लेयर का फूल इन टाइम्स में उसको तसल्ली देता और उसे बताता कि अब टाइम्स चेंज हो रहे हैं. नाउ-अ-डेज daughters are no more obedient. They want their fathers obedient. They want their obedient fathers instead of the other way around. खुद obedient होने के बजाय वो fathers को obedient देखना पसंद करती हैं. He told Lear he was wrong to give away his kingdom. अब उसने लेयर को बताया कि ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी कि उसने अपनी सारी किंगडम अपने हाथों से खो दी, खुद इनको दे दी थी और अपने पास कोई अथॉरिटी, कोई चीज नहीं रखी थी. Whenever Lear began to get angry, the fool would quickly make up a joke so that he would think of something else. और जब भी किंग लेयर नाराज होता तो फूल उसे कोई जोक सुनाता ताकि उसका मूड अच्छा कर सके. As many of these jokes were about daughters who didn't love their fathers. और ये जोक्स किस बारे में होते? डॉटर्स के बारे में जो अपने फादर्स से अब मोहब्बत नहीं करती थी. यानी वो उसको रियलाइज करवाना चाहता था कि सिर्फ आप ज्यादा परेशान मत हो. दिस इज नॉट ओनली इन केस ऑफ यू, बल्कि आजकल सारी ही डॉटर्स ऐसी हो गई हैं, वो अपने पेरेंट्स को इग्नोर करती हैं, अपने पेरेंट्स की ओबीडियंट होने के बजाय पेरेंट्स को अपना ओबीडियंट रखती हैं. Lear's fool was not popular with Gondrel. लेयर का फूल भी गॉनड्रिल के यहाँ मशहूर नहीं था. मीन्स गॉनड्रिल डिड नॉट लाइक हिज फूल. शी कुडंट वेट टू गेट रिड ऑफ हिम. और वो उसका बस चलता तो वो फौरन उससे निजात हासिल करने की कोशिश करती. शी कुडंट वेट, वो इंतजार नहीं कर सकती थी टू गेट रिड ऑफ हिम. गेट रिड ऑफ हिम, उससे निजात हासिल करने के लिए. Gondrel had less and less patience with her father and his complaints. और Gondrel अपने फादर के बिहेवियर पर, उसकी शिकायतों पर सब्र नहीं दिखाती, बल्कि जब वो किंग लेयर उससे कोई कंप्लेन करता तो वो उसका गुस्से से जवाब देती, उसको ऐसे पोज करती कि वो उसकी कंप्लेंट्स जो हैं वो उनसे तंग आ गई है, इरिटेटिंग है उसके लिए, और वो उनसे नाराज होती कि आपकी कंप्लेंट्स तो फॉर नथिंग है, इसमें कोई कंप्लेन करने वाली बात नहीं, सब ऐसे ही होता है. शी बिगेन टू एक्यूज, उसने इल्जाम देना शुरू किया. एक्यूज, इल्जाम लगाना. हिज नाइट्स, उसके सोल्जर्स को. शी बिगेन टू एक्यूज हिज नाइट्स, उसने उस किंग के सोल्जर्स पर इल्जाम लगाना शुरू किया. ऑफ बैड बिहेवियर अगेन, दोबारा से उनके बैड बिहेवियर का. कि क्या बैड बिहेवियर के जो उसके सोल्जर्स हैं, उसके ब्रेव नाइट्स हैं, वो यहाँ बैठे कोई काम नहीं करते और उनको उसे खाना खिलाना पड़ता है, उनकी जरूरियात पूरी करनी पड़ती है, पे देनी पड़ती है उनको. तो ये एक उसके लिए एक इजाफी खर्चा था जिससे वो बहुत तंग होना शुरू हो गई. अभी एक माह भी नहीं गुजरा, जस्ट थोड़े दिनों में ही वो इन सब से तंग आ गई. फादर, अब उसने अपने फादर से किस तरह से बात की. फादर, इज देयर एनी रीजन फॉर यू टू कीप 100 नाइट्स एंड ऑल ऑफ देयर सर्वेंट्स. आपके क्या वजह है, आपके पास क्या रीजन है, आप मतलब आपने क्यों ये 100 नाइट्स और साथ उनकी खिदमत के लिए और भी मुलाजिम रखे हैं जो उनके लिए खाना, उनकी दूसरी जरूरतों को पूरा करते हैं. These men are too much rough and unpleasant for us. कि ये लोग मेरे लिए, बल्कि हम सब के लिए, यानी उसके हस्बैंड के लिए और उसके बाकी लोगों के लिए
are too rough. Rough mean indecent and unpleasant. Unpleasant जिनसे उसे कोई खुशी नहीं होती, जिनके अंदर मैनर्स नहीं है, ये रफ है, indecent है, ill mannered है. Their bad manners affect the whole castle. और उसने फिर आगे क्या कहा कि इन सोल्जर्स की जो इनके बैड मैनर्स, उनके गलत रवैये, उनका गलत बिहेवियर अफेक्ट असर अंदाज हो रहा है द होल कैसल, सारी कैसल पर. कैसल मीन उसकी रिहाइश का, उसका जो महल था जहां वो रहती थी. उसने कहा कि मेरे घर पर इनके ill manners असरअंदाज हो रहे हैं. They do nothing but eat and drink, quarrel and get drunk. कि ये सारा दिन कोई काम नहीं करते बल्कि सिर्फ खाते और पीते हैं, quarrel झगड़ा करते हैं, and get drunk और drink करते हैं. यानी ये सारा दिन खा पी के झगड़ा करते हैं, फस मचाते हैं और कोई काम नहीं है. They have turned this castle into a soldier's drinking house. और moreover उसने क्या कहा कि इनकी वजह से मुझे इन 100 सोल्जर्स की वजह से इन्होंने मुझे ऐसे लगना शुरू हो गया है कि मेरा घर इन्होंने एक सोल्जर के ड्रिंकिंग हाउस में तब्दील कर दिया, यानी ये एक ड्रिंकिंग बार में चेंज कर दिया जहां ये सारा वक्त खाते पीते और ड्रिंक करते हैं. मतलब मेरे घर में एक कैसल की, एक पुरसकून घर की इमेज ही नहीं नजर आती इनकी वजह से. Just the shame of it should be enough to make you do something. और इससे शर्मिंदा होकर आपको चाहिए, आपको भी ये सब नजर आता है और आपको चाहिए कि आप इनके लिए कुछ खुद डिसाइड करें. So please father, अब उसने अपने फादर से क्या कहा, please reduce the number of knives a little. Reduce कम करें. Reduce mean कम करना, lessen less करना, कम करना. यानी 100 नाइट्स से कम कर दें अपने नाइट्स को. A little को थोड़ा कम कर दें. Before I do something about them myself, इससे पहले कि मैं खुद इनके बारे में कोई एक्शन लूं, आपको चाहिए कि आप खुद ही इनकी तादाद को कुछ कम करें और इनके बारे में कुछ डिसीजन लें. And make sure that those you keep are good, quiet old men. और उसने साथ ये भी कहा कि कोशिश करें अब जो आप अपने साथ नाइट्स रखें बाकियों को निकाल दें और जो अपने साथ रखने हैं कोशिश करें कि वो अच्छे हों, खामोश तबाह हो, क्वाइट खामोश रहने वाले, और ओल्ड मैन हो जो कुछ ज्यादा उम्र के हों ताकि वो ज्यादा झगड़ा वगैरह ना करें, आपस में शोर शराबा ना करें और खामोश रहा करें, मेरे घर में सुकून रहने दें. The sort of men anyone would expect to see serving someone as old as yourself. और इस तरह के आदमी अब रखें अपने साथ, इनमें से सिर्फ वो जो आप जैसे बूढ़े शख्स को सर्व करें सुकून से और खामोशी से. बाकी यंगस्टर्स और शोर शराबे वाले लोग आपके साथ नहीं होने चाहिए. Lear could not believe his ears. Lear को अपने कानों पर यकीन नहीं आया. जाहिर है वो एक बादशाह रहा था और उसने जिस तरह की जिंदगी गुजारी थी और जिस चीज को वो एक्सपेक्ट कर रहा था, he couldn't believe his ears. उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी उसके साथ इस तरह से गुफ्तगू कर सकती है और उसके डिसीजंस को इस तरह से क्रिटिसाइज करेगी. बैड टेम्पर तो वो पहले ही था. कॉर्डेलिया की बात भी उससे बर्दाश्त नहीं हुई और उसने कॉर्डेलिया को निकाल दिया. What's this? What's this? ये सब क्या है? अब वो गुस्से से बोला, What's this? You thankless one? Thankless one? तुम नाशुक्री. What lies you tell? तुम मुझे झूठ बता रही हो. कैसे झूठ तुम मुझे बता रही हो? My nights are the best in the world. मेरे नाइट्स दुनिया के बेहतरीन नाइट्स हैं, बेहतरीन सोल्जर्स में से हैं. यानी जो बादशाह ने जाहिर है अपनी सर्विसेज के लिए जो अपना पर्सनल स्टाफ रखा था, दैट वाज द बेस्ट वन. वो सारे सोल्जर्स, दे वर द बेस्ट वंस इन द वर्ल्ड. They are the finest men of their kind and they know exactly how to serve me. और उसने कहा कि ये तो
फाइनेस्ट वन है और इनको पता है, दे ऑल नो एग्जैक्टली कि किस तरह से मुझे सर्व करना है, कैसे मुझे खुश रखना है. Tears of anger and disappointment ran down the old man's face. और अब वो इतना दुखी हुआ कि आंसू, tears of anger, नाराजगी के आंसू, and disappointment और मायूसी, anger गुस्सा, नाराजगी, disappointment मायूसी, tears आंसू. उसकी आंखों, उसके चेहरे पर बहना शुरू हुए, आंसू उसके चेहरे पर बहना शुरू हुए. He couldn't believe what was happening to him. जो उसके साथ हो रहा था उसे इस पर यकीन नहीं आ रहा था. He cursed Conrill as loudly as his trembling voice would let him. He cursed Conrill. Curse होता है बुरा भला कहना, लान पान करना, यानी उसने कॉनरिल को बुरा भला कहना शुरू किया, उस पर लान पान करना शुरू की कि इस सब के लिए, as loudly, इतनी ऊंची आवाज में, as his trembling voice would let him, जितना कि उसकी कांपती हुई आवाज में वो कर सकता था, यानी गुस्से से कांपती आवाज में वो जितना भी चीख के उसे बुरा भला कह सकता था उसने कहा. May you never have children, you unnatural creature. अब उसने गुस्से में अपनी बेटी से क्या कहा, उसको बद्दुआ देने लगा. May you never have children, कि तुम्हारे कभी औलाद ही ना हो. You unnatural creature, तुम unnatural creature हो, यानी तुम्हारे अंदर कोई इंसानी सिफ्त ही नहीं है, तुम गैर इंसानी मखलूक हो, खुदा तुम्हें कभी औलाद ही ना दे. नो नो, आई होप यू डू हैव चिल्ड्रन. और फिर उसने कहा, ओ नो नो, आई होप, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे भी बच्चे हों. एंड दैट दे मेक यू एज अनहैप्पी एज यू हैव मेड योर फादर. और वो भी तुम्हें उतना ही नाखुश करें, उतना ही डिस्प्लीज करें, उतना ही मायूस करें जितना कि तुमने अपने बाप को किया है. आई एम लीविंग दिस हॉरिबल प्लेस, आई एम लीविंग दिस हॉरिबल प्लेस, मैं ये खौफनाक जगह यानी टेरिबल प्लेस, तकलीफ दे जगह छोड़ रहा हूँ. आई शैल गो एंड स्टे विद रीगन, मैं जाकर मैं आई शैल गो, मैं जाऊंगा, एंड स्टे विद रीगन, और रीगन के साथ रहूंगा. Regan knows the way to treat her father the king. और उसने कहा कि रीगन knows the way, रीगन को पता है किस तरह से अपने फादर किंग को ट्रीट करना है, कि रीगन को पता है एक बादशाह को कैसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए. तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रही, मैं अब मजीद तुम्हारे साथ नहीं रुकूंगा. Gonrill's husband, now come to the next page. Gonrill's husband, the Duke of Albany, did not agree with Gonrill's behavior. Gonrill का husband, Duke of Albany, वो Gonrill के behavior से, Gonrill के रवैये से एग्री नहीं करता था, वो उसको पसंद नहीं करता था कि बादशाह को ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए जैसे Gonrill कर रही है. बट लियर was her father, लेकिन फिर भी लियर उसका बाप था, फादर था, एंड ही डिडंट वांट टू इंटरफेयर, और वो बाप बेटी के मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहता था. इंटरफेयर, अफेक्ट करना, मुदाखलत करना, इंटरफेयर मुदाखलत करना, दखल अंदाजी करना, और वो उन दोनों के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करना चाहता था. He came into the room as the king and Gonrill were quarreling. जब किंग लियर और Gonrill का झगड़ा हो रहा था, क्वारलिंग, जब उनकी लड़ाई झगड़ा हो रहा था, यानी वो बहस कर रहे थे, वो दरमियान में उस रूम में आया. When he heard what had happened, और जब उसने सुना, when he heard, जब उसने सुना, what had happened, कि क्या हुआ है, he tried to calm Lear, उसने किंग लियर को खामोश करवाने की, पुरसुकून करवाने की कोशिश की, लियर को तसल्ली देने की कोशिश की, उसको पुरसुकून करवाने की कोशिश की. But Lear would not listen to him, लेकिन Lear ने उसकी बात ना सुनी. The king called his servants to tell them to make preparations to leave. अब उसने किंग के गुस्से को ठंडा करने की, उसे समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन लियर
काफी गुस्से में था और उसने उसकी बात ना सुनी. He called his servants. उसने अपने servants को बुलाया और उन्हें कहा कि जाने की तैयारी करें. कहाँ जाने की? रीगन के घर. Now he had decided to leave Gonville and go and stay with Regan. Then he found out, और जब उसने सर्वेंट्स को प्रेपरेशंस के लिए कहा, then he found out, तब उसे मालूम हुआ, उसे पता चला. Found out mean उसे पता चला, उसे मालूम हुआ that by Gonville's order, कि Gonville के हुक्म से, Gonville के कहने पर 50 of his 100 knights had already been sent away. कि उसके 100 नाइट्स में से 50 नाइट्स को गॉनविल पहले ही निकाल चुकी है. उसके 50 नाइट्स पहले ही गॉनविल के हुक्म पर निकाले जा चुके हैं. फ्यूरियस, फ्यूरियस मीन वेरी एंग्री. He left the Duke of Albany's castle. उसने बहुत ज्यादा शदीद गुस्से में उसने ड्यूक ऑफ अल्बानी की कैसल छोड़ दी with his servants, अपने सर्वेंट्स के साथ, and the faithful कैस, और अपने वफादार कैस के साथ. The king decided to send Cass with a letter to tell Regan that he was coming. और किंग ने डिसाइड किया कि कैस को एक खत लिखकर रीगन के पास भेजा जाए और उसे बताया जाए that he was coming. बेशक अब उसके पास किंगडम नहीं थी, लेकिन उसकी आदतें वही शाहाना थी. He was a king. और उसका यही तरीका था कि जब वो कहीं जाना होता वो पहले इन्फॉर्म करे, कि वो उसको इन्फॉर्म करे अपनी बेटी को, ताकि वो उसके शायान शान तैयारियां करे, उसको इस्तकबाल करने के लिए, उसको अच्छी तरह से वेलकम करने के लिए. But when Cass reached the Duke of Cornwall's castle, लेकिन जब कैस ड्यूक ऑफ कॉर्नवल्स के घर पहुंचा, उसकी कैसल पर, उसके रिहाइश गाह में पहुंचा, he discovered, उसने देखा, discovered mean he found, उसने देखा, उसने दरियाफ्त किया that Gonville had also written to Regan, और उससे पता चला कि गॉनविल ने उससे पहले रीगन को ये सब लिखकर भेज दिया है. यानी सारे हालात गॉनविल ने उससे पहले लिखकर भेज दिए थे. She told her sister, उसने अपनी बहन को बताया था that she had quarreled with her father, कि उसके अपने फादर से झगड़ा हुआ है, and warned Regan, और उसने रीगन को वार्न किया, खबरदार किया, आगाह किया, तंबीह की. वार्न करना, आगाह करना, तंबीह करना, that their father was an impossible guest. और उसने रीगन को वार्न किया था कि उनका फादर अपने बैड टेम्पर की वजह से, अपने बैड टेम्परामेंट, अपने शदीद गुस्से की वजह से एक इम्पॉसिबल गेस्ट बन चुका है. इम्पॉसिबल नामुमकिन, ऐसा मेहमान जिसे खुश रखना, जिसे एंटरटेन करना नामुमकिन था, जिसको खुश रखना, जिसको ट्रीट करना नामुमकिन हो गया था उनके लिए. After reading Gonville's letter, Regan and her husband decided to go and visit the Duke of Gloucester rather than staying to welcome the king. और गॉनविल का खत पढ़ने के बाद रीगन और उसके हस्बैंड ने डिसाइड किया कि वो यहाँ से आकर यहाँ से जाएं और ड्यूक ऑफ ग्लूसेस्टर को विजिट करें, मतलब उसको पास चले जाएं. घर में रहकर किंग को वेलकम करने के बजाय उन्होंने उनके करीब ही एक और स्टेट थी, एक करीब का शहर ग्लूसेस्टर, वहां चले जाएं एज अ गेस्ट, और किंग को यहाँ रुक के वेलकम ना करें. मतलब वो दे वांटेड टू अवॉइड द किंग, they didn't want to welcome the king, so they decided to go and stay at Gloucester, कि ग्लूसेस्टर के पास चले जाएं और एक आध दिन वहां रहकर आए, ताकि जब किंग आए तो उन्हें उसे वेलकम भी ना करना पड़े, और सेकेंडली किंग हो सकता है उनकी एब्सेंस में वो खुद ही वहां से चला जाए. Cass still waiting for a reply to the king's letter. Cass अभी तक
किंग के जवाब का मुंतजिर था कि किंग के खत का कोई जवाब मिले, वो उसका मुंतजिर था। Followed them there, और उसको चूंकि कोई जवाब नहीं दिया था, किंग ने जो लेटर भिजवाया था उस लेटर का कोई रिप्लाई उन्होंने नहीं दिया था, इसलिए वो उसके पीछे, उनके पीछे पीछे ग्लूसेस्टर गया। द ड्यूक ऑफ ग्लूसेस्टर के पास वो गए थे और वो भी उनके फॉलो करता हुआ ग्लूसेस्टर चला गया। द फर्स्ट पर्सन ही मेट, पहला शख्स जो he met, जो उसे मिला, when he arrived at Gloucester's castle, जब वो ग्लूसेस्टर की कैसल पर पहुंचा तो पहला शख्स जो उसे वहां मिला, he was the servant who had been rude to the king at dinner, वो वही सर्वेंट था जो किंग के डिनर के दौरान उसे मिला और उसने उससे मिसबिहेव किया था, जो किंग से मिसबिहेव कर रहा था और इसे उठा के उसने बाहर फेंका था, वही शख्स उसे वहां मिला। ओके स्टूडेंट्स, now the time is going to an end. Allah Hafiz to all of you.